Fine. So we continue from the last part wherein we had just discussed about the condition of spontaneity. So the most important application of thermodynamics is to decide whether a given reaction is spontaneous or not. Now, the spontaneity of a chemical reaction can be analyzed with the help of which thermodynamic parameter? Just entropy? Sorry? And the enthalpy. And combinedly, we have a third thermodynamic parameter through which we can determine the spontaneity of the reaction, and that is Gibbs free energy. So spontaneity of a reaction thermodynamically can be determined using Gibbs free energy, which is basically a combination of energy as well as entropy. And these two things are different. These two things are different. We know that for the universe, the total energy always remains conserved, but the entropy of the universe always goes on increasing and tends to reach the maximum value. तो यहां से मैंने ये बताया था कि चाहे कोई भी सिस्टम या प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड हो, फिर भी उसकी एंट्रोपी बढ़ते जाएगी if the process is spontaneous. मतलब for any irreversible process, the delta S will always be ever increasing. ठीक है? So that spontaneity can be now related with energy and entropy related as delta H and delta S with the formula delta H minus T delta S. This particular equation is importantly called Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Now, let's understand the condition for the spontaneity with regards to the Gibbs energy. So, सबसे पहले वापस एक फॉर्मूला वो जो लिखा था वो लिखता हूँ. Delta G for the system is equal to delta H of the system minus T delta S of the system. Gibbs energy is equal to enthalpy minus T delta S for the system. Ab for irreversible process which is always spontaneous, the total entropy which is also the entropy of the universe, what is the condition? For any irreversible process which is spontaneous, the total entropy of the universe is greater than zero. तो ये कंडीशन ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं और सारे नेचुरल प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ते जाता है, इसलिए पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी is always going on increasing despite of the energy remaining conserved, energy remaining constant. ठीक है? तो अब ये कंडीशन को यूज करके we will derive a condition for the Gibbs free energy. तो उसका छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. So when I say total entropy या the universe का entropy, it will be equal to the sum of entropy of the system and entropy of the surroundings. Now, tell me how was delta S defined with respect to heat and temperature? What was the formula? NCB T2 by T1. Now, in terms of heat and temperature, I'm asking. Q by T. Q by T, सिंपल वाला. और उसी से हमने चारों प्रोसेसेस के लिए एक जनरल डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम डिराइव किया था और उसके थ्रू अलग अलग प्रोसेसेस का डेल्टा एस आइडेंटिफाई किया था.
बट डेल्टा एस एक सिंपल मैनर में क्या है, इट्स क्यू रिवर्सिबल अपॉन द टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एस सराउंडिंग लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू हीट for any process carried out reversibly of the surrounding upon the temperature. Will that be okay? Yes, sir. Now, let's say there is a reaction which is carried out at a constant temperature and at a constant pressure. एक open container में कोई chemical reaction हो रहा है under the constant temperature and pressure condition. ठीक है? तो सिस्टम में द रिएक्शन विच इज हैपनिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब द हीट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। नाउ इफ द हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, सराउंडिंग में क्या होगा? Heat is absorbed. इट विल एब्सॉर्ब द हीट। मतलब अगर सिस्टम में कोई रिएक्शन या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सराउंडिंग में Endothermic. एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब द हीट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इन द सराउंडिंग will always be equal to the heat of the system with a negative sign upon temperature. चलेगा? क्योंकि जैसे ही मैंने कांस्टेंट प्रेशर बोला, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द QP and QP was in turn equal to what? Delta H. डेल्टा H। और सराउंडिंग का जो डेल्टा H है वो सिस्टम से नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, so it's minus delta H system upon the temperature. Is that okay? Yes, sir. So substituting the delta S surrounding in the equation 1, I get the total entropy equal to the system का entropy और surrounding की जगह minus delta H system upon the temperature. Multiplying the T throughout, T से multiply करेंगे तो it is T into delta S to, sorry, it's T into delta S total equal to T into delta S system minus delta H of system. Now multiply by -1 throughout. तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। Now look at the right hand side. Do you recall this? क्या है ये? Gives free energy. Gives free energy of System. system. मतलब माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये यूनिवर्स का है, विल बी इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम। ये रिलेशन क्लियर? Yes, sir. तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो विच इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, द यूनिवर्स का एंट्रोपी ऑलवेज इज Positive. पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी Negative. नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी सिस्टम हमेशा नेगेटिव होगा, लेस देन 0। सो नाउ गिवन एनी केमिकल रिएक्शन, अगर आपसे पूछा इज दिस रिएक्शन फीजिबल और नॉट, you will just ask what is the delta G. If it is negative, you will say that the reaction is spontaneous and irreversible and taking place on its own. समझा? Yes, sir. तो अगेन गोइंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैंने बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन A to B के लिए 3 एस्पेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। First aspect for any reaction is to understand feasibility. Second is to understand extent of the reaction. And third is to understand the rate of the reaction.
तो फिजिबिलिटी का आंसर हमें मिल चुका है कि उस रिएक्शन का डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 होना चाहिए। एक्सटेंड मतलब के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी बड़ा होना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड रेट यानी काइनेटिक्स, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये तीनों एस्पेक्ट को अगर मिलाया तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. Now, condition of equilibrium temperature and equilibrium constant. तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने उसको थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स दोनों के साथ रिलेट किया था अंडर द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हियर द mathematical equation relating that concept is delta G is equal to delta G naught plus RT ln of Q, where delta G अगर plain delta G लिखा है मतलब it is a Gibbs free energy under non standard conditions, बट जैसे ही मैं नॉट लिख देता हूं मतलब दैट इज अ गिब्स फ्री एनर्जी अंडर Standard condition. standard condition. Delta G is the non-standard Gibbs free energy and delta G naught is the standard Gibbs free energy. And plus RT ln of Q. R is the gas constant, T is the Kelvin temperature, and Q is the reaction quotient. Tell me, what was this reaction quotient? Equilibrium constant at any point. It's similar to the ratio of the K equilibrium, but in that case, we take the values of the concentration at any time other than equilibrium point. Other than equilibrium point. मतलब इसका रेशियो exactly K equilibrium के जैसा है, लेकिन the values of the concentrations are of any time other than equilibrium. और इसी से मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि अगर Q का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर है तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। इफ Q इज ग्रेटर देन K, देन Reaction goes in backward direction. reaction tends to shift in the backward direction, and if Q is less than K, it will shift in the forward direction. खत्म। ये था conclusion about the reaction quotient and the equilibrium constant relation. Right. Now, from this mathematical equation, let's say the condition of equilibrium has reached. तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ना तो स्पॉन्टेनियस होता है ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्शन is neither spontaneous nor non-spontaneous, and that's why at equilibrium the delta G reduces to 0 and the reaction quotient Q becomes equal to K. इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 हो जाता है एंड Q K के बराबर हो जाता है। मतलब कोई भी प्रोसेसेस अगर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहे हैं तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे स्पॉन्टेनिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डू यू अग्री? बोलो। तो अगर मैं प्रोसेस H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड लिखूं और पूछूं आपसे डेल्टा G इसका क्या है, व्हाट्स द आंसर? इसका मतलब क्या?
Zero. ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, और कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 273 केल्विन पे डिफाइन कर रहे हैं तो इसका डेल्टा जी तो डायरेक्टली जीरो है ना। सिमिलरली H2O लिक्विड टू H2O गैस के लिए डेल्टा जी जीरो होगा एट 373 केल्विन एंड सो ऑन। गॉट इट? Yes, sir. और अगर आपको इसका डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है तो विद डेल्टा जी रिड्यूसिंग टू जीरो, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। एंड अगर इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो तो डेल्टा जी नॉट इज गिवन एज -2.303 आर टी log of k equilibrium to the base 10. This is your thermodynamic expression related with the equilibrium constant K. Delta G naught is equal to -2.303 RT log of K equilibrium to the base 10. ठीक है, अब इसके तीन केसेस कंसिडर करते हैं। K equilibrium अगर 1 है, then what will be the delta G naught? Zero. 0. This log 1 will become 0 ना। K equilibrium अगर greater than 0 है, सॉरी greater than 1 है, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। और अगर K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, 0.5 या ऐसा कुछ, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। So just by looking at the equilibrium constant value, we can decide what is the standard Gibbs free energy correlation. It can either be 0, positive or negative, depending on the equilibrium constant value. Right? Yes, sir. अच्छा, this ln of K equilibrium, अगर मैं इसको लिखूं as डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी और नेगेटिव साइन को इधर ले लूं, तो टेल मी द रिलेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। E raised to minus delta G naught by RT. Super. The equilibrium constant can be related as e raised to minus delta G naught by RT. E raised to minus delta G naught by RT. ठीक है। सिमिलरली अगर 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है तो आई कैन राइट द के इक्विलिब्रियम एज, या एक स्टेप लिख लेता हूं, log of K equilibrium to the base 10 as minus of delta G naught upon 2.303 RT। मतलब अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है that can be calculated as 10 raised to minus delta G naught upon 2.303 RT। क्लियर है ये? Yes, sir. सुपर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है एंड Q becomes equal to K। थ्रू दैट वी गेट अ डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके अलग अलग फॉर्म्स मैंने लिखे हैं, एंड तीन कंडीशंस के इक्विलिब्रियम के थ्रू कैन डिफाइन योर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, वेदर इट इज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। Criteria for spontaneity of reaction. So for a reaction to be spontaneous, now the criteria is delta G of the system should be less than 0. And delta G is defined with respect to delta H and delta S with the formula delta H minus T delta S. तो अब delta H और delta S के 4 cases है which can be minus plus, plus minus, minus minus and plus plus. Now under this condition delta G को negative होने के लिए क्या क्या conditions होना चाहिए? Let's understand that.
So case 1, if your delta H is negative and delta S is positive, then this delta G will be negative. always negative. अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ही लेने वाले हैं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि टेम्परेचर आपका नेगेटिव ले. ठीक है, तो केल्विन में इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब दिस डेल्टा G इज ऑलवेज नेगेटिव. सो व्हेन इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब द रिएक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी spontaneous, right? And this will be always spontaneous at all the temperatures. कोई भी टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला ही नहीं है. इसका एग्जाम्पल है ओजोन डीकम्पोजिंग टू ऑक्सीजन. तो गोइंग बैक टू इनऑर्गेनिक P block, we know that ozone was a very unstable compound. It will immediately decompose into the stable dioxygen. So that reaction is spontaneous at any temperature. Understood? Yes, sir. And इसका रिवर्स डेल्टा H पॉजिटिव लिया और डेल्टा S नेगेटिव लिया, तो क्या होगा? Always positive. डेल्टा G हमेशा पॉजिटिव आएगा. हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब दिस रिएक्शन विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस ना, Yes, sir. एट ऑल द टेम्परेचर्स. तो अगर रिवर्स रिएक्शन ले ऑक्सीजन से ओजोन, ये कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता है. The oxygen present in the atmosphere can't get converted into ozone spontaneously on its own. You get that? Yes, sir. और यहाँ पर भी हमने thermodynamics को डिस्कस किया था, if you remember, and this was the whole discussion that इस particular reaction के लिए जो delta H है वो positive होता है. It's an endothermic reaction, and since the moles are decreasing, the delta S was negative. Now through that, अगर delta G में substitute करोगे तो delta G positive आएगा, and with delta G positive, the reaction is never ever going to become spontaneous. So given a reaction, वो spontaneous है कि नहीं है, वो हम delta G के through find out कर सकते हैं. That's the major application of this part. अब coming to case 3, दोनों अगर negative है, तो मान लो डेल्टा H का वैल्यू -2 है और T डेल्टा S का ओवरऑल वैल्यू मान लो -1 है. दोनों नेगेटिव है. तो अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो -2 माइनस ऑफ -1 विल बिकम -1. नेगेटिव -1. तो अगर डेल्टा G को नेगेटिव रखना है तो डेल्टा H और T डेल्टा S का मैग्नीट्यूड, व्हाट्स द कंपैरिजन? Delta H should have greater. डेल्टा H का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए. साइन तो दोनों का माइनस है ना, हमसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. मतलब डेल्टा G इस केस में सॉरी डेल्टा G इस केस में नेगेटिव होगा व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन T डेल्टा S. डू यू अग्री विद दिस? Yes, sir. मतलब इस केस में द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस ओनली एट लोअर टेम्परेचर्स, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा तभी तो T डेल्टा S छोटा वैल्यू आएगा एज कंपेयर टू डेल्टा H. हाँ कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली अगर दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए व्हाट्स द कंडीशन? अब मैग्नीट्यूड की वैसे जरूरत नहीं है ना. व्हाट्स द कंडीशन नाउ? Yes. डेल्टा H should be lesser than T डेल्टा S, और वो होने के लिए द टेम्परेचर वैल्यू शुड बी High.
high. मतलब this reaction will become spontaneous only at higher temperatures. समझा? Yes, sir. तो इस टेबल के 4 केसेस को सिंपल वे में समराइज कर सकते हैं. अगर डेल्टा H and डेल्टा S both are negative, then the reaction is spontaneous at low temperature. Minus minus, low temperature पे spontaneous. Plus plus, spontaneous at high temperature. Simple. Minus minus will be spontaneous at low, plus plus will be spontaneous at high. अगर साइंस ऑपोजिट है तो जो भी पहला साइन है वही डेल्टा जी का साइन हमेशा होगा. मतलब माइनस प्लस में डेल्टा जी इज ऑलवेज माइनस एंड प्लस माइनस में द डेल्टा जी इज ऑलवेज प्लस. पहले का साइन लेना है यानी डेल्टा एच का साइन. हो गया समरी? Yes, sir. And conceptually look at the last case का example. The example is calcium carbonate decomposing into quicklime and CO2. तो अपने घर पे जो मार्बल रहता है that is nothing but made up of limestone, CaCO3. तो क्या मार्बल पड़े पड़े डिकम्पोज होकर क्विकलाइम और CO2 में कन्वर्ट होता है? नो, बिकॉज वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर. और जनरली वो 500-600 केल्विन के ऊपर स्पॉन्टेनिटी पॉसिबल होगा. इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट एज अ नेचुरल प्रोसेस doesn't have the decomposition under normal conditions of temperature and pressure. इसीलिए तो spontaneity आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है. You get that? Yes, sir. अच्छा, अब लो टेम्परेचर मतलब कितना लो और हाई टेम्परेचर मतलब कितना हाई, ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? We know that delta G of the system is equal to delta H minus T delta S. When I'm not writing anything, it is by default of the system. SYS लिखने की जरूरत नहीं है. It is by default. है ना? अच्छा, मान लो ये लो टेम्परेचर करीबन T केल्विन है. तो T केल्विन से सारे लोअर टेम्परेचर्स पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. अब T से ज्यादा हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. तो T से कम में स्पॉन्टेनियस, T से ज्यादा में नॉन स्पॉन्टेनियस. T पे क्या होगा? एट T केल्विन. हाँ, समझा? मतलब अगर मुझे ये टेम्परेचर एनालाइज करना है तो आई हैव टू जस्ट टेक द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो हमें पता है कि व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ रिएक्शन, इट्स नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड फॉर दैट द डेल्टा जी is equal to 0. And when this is equal to 0, your delta H will be equal to T delta S. And T is the equilibrium temperature. So your equilibrium temperature to decide the spontaneity will be calculated by the ratio of delta H by delta S. Matlab, when I am saying at low temperature, it should be lower than the equilibrium temperature, which is less than delta H by delta S. High temperature matlab it should be greater than delta H by delta S. खत्म. समझा? Yes, sir. तो सिंपल ये टेबल है जिसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे एंड इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. ऑपोजिट साइंस में टेक द साइन ऑफ द फर्स्ट वन, सेम साइंस में प्लस प्लस हाई पे माइनस माइनस लो पे. खत्म, समरी खत्म. और कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी आएगा उसके लिए डेल्टा H बाय डेल्टा S का रेशियो से कैलकुलेट करना है. Now, the last part of the chapter, third law of thermodynamics. Now, zeroth, first and second law we have already discussed. Third law is specific to the solids.
and it states that the entropy of all perfectly crystalline solids is zero at the absolute zero temperature. The entropy of all perfectly crystalline solids is zero at the absolute zero temperature. Now, perfectly ordered crystalline solid क्या होता है? हमें पता है कि crystalline solids में the constituent particles are arranged in a perfect ordered manner. और perfect का मतलब क्या? कि उस पर्टिकुलर सॉलिड में कोई भी तरह का डिफेक्ट्स नहीं है. हमने सॉलिड्स में पढ़ा है ना, सॉलिड्स का इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट्स. अब डिफेक्ट्स कई तरह के हो सकते हैं, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, शॉटकी, फ्रेंकेल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी एंड सो ऑन. बराबर. तो जब हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, ये एक आइडियल सॉलिड हो गया जिसमें कोई भी तरह के डिफेक्ट नहीं है. तो ऐसा सॉलिड्स का एंट्रोपी इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी 100% perfect. And that's why we can say that the entropy of such perfectly crystalline solids is going to be equal to zero. And since entropy is a measure of disorder, it can be interpreted from the third law that at absolute zero, a perfectly crystalline solid has perfect order of its constituent particles, meaning there are no imperfections at all. समझा statement? Yes, sir. अब ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्या है वो इंटरेस्टिंग है. तो थर्ड लॉ के हिसाब से द एंट्रोपी ऑफ एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. तो मान लो अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करता हूं तो इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी. Let's say for a given solid, the final entropy is defined at a temperature T Kelvin and the initial entropy is defined at 0 Kelvin. So I can say final minus initial is ST minus S0. Now, according to third law, can you conclude anything from this? क्या बोला थर्ड लॉ ने? S0 is 0. S0 0 है, मतलब एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0. तो ये उड़ गया, मतलब डेल्टा एस एस टी के बराबर हो गया. इसका मतलब जो डेल्टा एस है दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू ओनली. सो मैंने एंट्रोपी जब बताया था तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज पॉसिबल टू बी डिटरमाइंड, राइट? Yes, sir. तो थर्ड लॉ का यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया. The application is you can find the absolute entropy for a given solid at a temperature T Kelvin, because जो उसका absolute value है वही उसका delta S value है जो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना anyways. आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. डेल्टा S का फॉर्मूला इज गिवन एज Q रिवर्सिबल बाई T and under constant temperature and pressure I can say this is equivalent to QP by T. What is QP in turn equal to? Delta H. So this is equal to delta H over T, and delta H was defined with respect to Cp. What was that relation? NCP delta T. NCP delta T. Perfect. तो just relation को follow करो. Q reversible by T at a constant pressure is QP by T, which is equal to delta H by T.
which is in turn equal to NCP delta T by T. यानी ये जो अपना डेल्टा S है, अगर मैं स्मॉलर चेंजेस के लिए देखूं तो ds लिख सकता हूं, that's equal to the absolute value, and that in turn is equal to Cp into dt by T, obviously defined for 1 mole. तो 1 मोल के लिए n1 हो जाएगा, एंड n अगर 1 हुआ तो ये Cp dt by T हो गया. So if I know the heat capacity for a particular substance, then if I integrate this ds over the range of temperature from 0 to T, I will get the St का value. हाँ कि नहीं? Yes, sir. And now that is equal to integrating Cp dt by T under the range of temperature 0 to T. So knowing the heat capacities for the substance, through this relation, I can find the absolute value of the entropy. समझा? Yes, sir. तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मेन एप्लीकेशन, स्टेटमेंट और ये एप्लीकेशन, बस इतना ही है, ज्यादा डीप में थर्ड लॉ नहीं है आपके सिलेबस में. And with this, there are some limitations associated with the third law. Here are the limitations. First one, glassy solids, even at 0 Kelvin, has entropy greater than 0. थर्ड लॉ को वायलेट कर रहा है ये. अब मुझे बताओ, ग्लासी सॉलिड्स में एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? Going back, हाँ, they are actually not the perfectly crystalline solids, they are amorphous. Also, glass is considered to be the most viscous liquid. ग्लास क्या है? सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. अब ये फिनोमेना शायद आपने कहीं पे ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप बहुत ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते हो, 100 साल 150 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स, तो वहां पर जो विंडो पेन्स है या फिर ग्लास विंडोज है या डोर्स है ग्लास के, ठीक है, तो उसमें जो थिकनेस होता है ना ग्लास का, इट्स नेवर यूनिफॉर्म. उसमें देयर इज थिकनेस गोइंग ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्यों? बिकॉज ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो सिलिकेट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो. मतलब ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है. ऑब्वियसली साल 2 साल में ये चेंजेस नहीं दिखता, इसीलिए मैंने आपको बोला ओल्ड मॉन्यूमेंट्स जो 100 से 150 साल पुराने हैं, वहां पर आप देखोगे ये जो पार्टिकल्स है ना, ये फ्लो करते हैं, एंड ग्रेविटी की वजह से इट्स जस्ट फ्लोज डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द थिकनेस एट द बॉटम इंक्रीजेस एंड द थिकनेस एट द टॉप स्लाइटली इज ऑलवेज लेसर. इट बिकम्स अनयूनिफॉर्म. ठीक है? So glass is the most viscous liquid with its constituent particles having a tendency to flow. That's why its entropy can never be equal to 0, even at absolute 0 temperature. Do you get that? Yes, समझा क्या? Next, solids having mixture of isotopes do not have 0 entropy at 0 Kelvin. For example, entropy of solid chlorine is not 0 at 0 Kelvin because chlorine के 2 isotopes होते हैं, 35 and 37, and that too they are in the ratio of 3:1. ये 75% होता है और ये 25% होता है, बराबर. तो इन दोनों आइसोटोप्स में अरेंजमेंट भी थोड़ा डिफर करता है, इसलिए कंबाइनली किसी भी आइसोटोपिक फॉर्म का एंट्रोपी 0 नहीं हो सकता. And there are some crystals like carbon monoxide, nitrous oxide, nitric oxide and water
जिसका एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। नो को N2O, 3 एग्जांपल हमेशा बोलता हूँ न्यूट्रल का, ना को N2O, नो को N2O, राइट। तो इनका भी जो अरेंजमेंट है ये परफेक्ट नहीं होता है इवन एट 0 केल्विन। सो दीज आर द एक्सेप्शंस और यू कैन से लिमिटेशंस टू द थर्ड लॉ। 3 पॉइंट्स में अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो तो ग्लास, आइसोटोप और न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एंट्रोपी इज नॉन जीरो इवन एट 0 केल्विन। दैट्स इट। अंडरस्टूड? Yes, sir. So that completes the synopsis of thermodynamics chapter, with the third law being the last part. Now इसके related MCQs. Section F. Which of the following conditions regarding a chemical process ensures its spontaneity at all temperature? कौन सा condition will ensure spontaneity at all temperature? Second one. Delta H negative and delta S positive. Minus plus का combination will have delta G always minus at all the temperatures. Next, for isothermal expansion in case of an ideal gas, delta G और delta S का क्या relation correct है? डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है then is any of the term becoming zero? आइसोथर्मल में डेल्टा U तो 0 है और डेल्टा H भी 0 होता है, because even enthalpy is a function of temperature. तो isothermal process में delta U delta H both are equal to 0. Delta U equals to delta H, both are equal to 0. And what can you comment about delta S? Is it 0 for isothermal? In fact इसका value भी हमने discuss किया था. Can you tell me that? Isothermal का NRLN by सुपर, क्योंकि डेल्टा एस का जनरल फॉर्म क्या था? NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, T2 by T1 वाला टर्म छू तो बचेगा NR ln V2 by V1, मतलब ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा H 0 है आइसोथर्मल का तो डेल्टा G माइनस T डेल्टा S के बराबर होगा। नेक्स्ट, for the gas phase decomposition of phosphorus pentachloride to PCl3 and Cl2, what are the signs of enthalpy and entropy? Enthalpy will be positive because decomposition reaction will always require the heat, and that is why वो endothermic होगा। And how do you decide delta S का sign? Sorry, delta NG, मतलब मोल्स, गैसियस मोल्स को चेक करो तो यहाँ पर 1 mole of PCl5 is giving you 2 gaseous moles, so entropy is going on. reason. So the answer is option 2. Next, in an irreversible process taking place at constant temperature and pressure, and which
in which only pressure volume work is being done. The change in Gibbs free energy dg and the change in entropy ds satisfy the criteria. ds less than 0, dg less than 0 या फिर अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है. नाउ यहाँ पर खाली एक वर्ड को आप पकड़ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन में ही आंसर है. Irreversible. Correct. And all irreversible processes are always Greater than what? Spontaneous. And condition of spontaneity क्या बोलता है? Delta G should be less than 0, and delta S should be greater than 0. greater than 0. और वो कॉम्बिनेशन ऑप्शन 2 में दिखेगा. तो इट्स ds greater than 0 and dg less than 0. Next, consider the delta GF naught. This is called standard Gibbs energy of formation, and delta HF naught standard enthalpy of formation in kilojoule per mole for the following oxides. Which oxide can be most easily decomposed to form the metal and oxygen gas? कौन सा ऑक्साइड सबसे इजीली डिकम्पोज करता है? ना अगर ये डेल्टा जी डेल्टा एच ना भी दिया हो तो भी आपको आंसर आना चाहिए. ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो इमीडिएटली मेटल और ऑक्सीजन देता है? HgO. HgO, यही आंसर है. अगर आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट और इनऑर्गेनिक में हमने हापा वाले ऑक्साइड्स का बात किया था. हापा पता है क्या? नहीं. ओके. हापा वाले ऑक्साइड्स मतलब द ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, नोबल मेटल्स. हापा के ऑक्साइड्स को थोड़ा सा भी हीट कर लो, वो इमीडिएटली मेटल और ऑक्सीजन, जनरल लिखते हैं, मेटल एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है. इसीलिए तो गोल्ड ऑक्सीडाइज होकर गोल्ड का ऑरिक ऑक्साइड नहीं बनाता है ना. एंड दैट इज द रीजन इट डज नॉट रस्ट. And that is the reason they are also called noble metals. You agree? Yes, sir. तो ये हापा के ऑक्साइड्स मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड के ऑक्साइड्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. थोड़ा सा हीट करो एंड दे आर इमीडिएटली डिकम्पोजिंग टू गिव द मेटल एंड ऑक्सीजन. दैट्स इट. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है. तो अब ये जो डेल्टा जी है ना, दिस इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड. नाउ टेल मी, हाउ डू यू राइट द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड? बोलो. Hg plus half O2 gives 1 HgO. हमेशा ऐसे बोलो, 1 मोल ऑफ HgO obtained from Hg plus half O2, ताकि वो 1 मोल हमेशा आपका फिक्स हो जाए. फॉर्मेशन मतलब 1 मोल ऑफ HgO formed from its constituent elements Hg and oxygen in their standard state and with a balanced reaction. ये होगा. अब इसके साथ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -58.5 दिया है और डेल्टा एच नॉट का वैल्यू -90.8 दिया है. तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ये है. तो रिवर्स रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ HgO का डेल्टा जी वुड बी Negative. है. Negative of that. हाँ, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा. और डेल्टा जी पॉजिटिव होना मतलब द रिएक्शन इज बिकमिंग Non-spontaneous.
नॉन स्पॉन्टेनियस। समझा? ठीक है, अब बाकी सारे का डेल्टा जी काफी ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड वुड बी वेरी मच स्टेबल ना। मोर द डेल्टा जी नेगेटिव, मोर इज द स्टेबिलिटी, साथ में डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो जितना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। डू यू अग्री? Yes, sir. इसीलिए कैन आई से जिंक का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड आर ऑल स्टेबलर ऑक्साइड्स देन द मर्क्यूरी का ऑक्साइड। इसलिए मर्क्यूरी वाला ऑक्साइड इमीडिएटली टूटेगा इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन। चलो आगे। व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure is converted into steam at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure? Just understand the words. 1 mole water at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure converted into steam at 100 degrees Celsius and 1 atm pressure. Can I say they are talking about water liquid converted into water gaseous, and they are talking about 100 degrees Celsius and 1 atm pressure? Isn't this an equilibrium process? हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा? Zero. जीरो। मैंने आपको पहले भी बताया, यही कॉन्सेप्ट बताया था पीछे भी। ये देखो, सॉलिड टू लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो डेल्टा जी जीरो होगा। तो खाली उसको स्टेटमेंट फॉर्म में उन्होंने लिक्विड टू गैस के रिलेटेड क्वेश्चन दिया था ना। यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. आगे, द एंथैल्पी चेंज for a given reaction at 298 Kelvin is minus x joule per mole, x being positive. If the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin, the entropy change at that temperature can be negative but numerically larger than x by 298. Sorry, can be negative but numerically smaller than x by 298. Cannot be negative, cannot be positive. Okay, delta H is given to be negative और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी भी कंफर्म है कि नेगेटिव है। तो डेल्टा एस का क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है? कैन यू टेल मी फ्रॉम द टेबल? इफ योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस कैन बी व्हाट? Minus or plus. इनफैक्ट जब वो प्लस होगा तो इज इट कंडीशनल या इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर? All temperature. ऑल टेम्परेचर्स। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, इज इट कंडीशनल हियर? Low temperature. It will be spontaneous only at low temperature. समझा? Yes, sir. Can you tell me the answer now?
1. Can be negative but numerically larger than x by 298. Why it should be larger? t into delta s वाला टर्म अगर बोल रहे हैं कि डेल्टा एस जो है वो x अपॉन 298, x क्या है अपना डेल्टा एच, राइट? तो शुड योर डेल्टा एस be greater than this value or smaller than this value? इसमें कंडीशन क्या लिखा था हमने? Your magnitude of delta H should be minus minus is spontaneous at low temperature because delta H would be greater than T delta S, right? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो अगर आप डेल्टा एस को देखोगे तो डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच बाई टी होना चाहिए ना? Yes, sir. मतलब नेगेटिव अगर होगा तो इट हैज टू बी न्यूमेरिकली स्मॉलर देन x by 298. कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी पॉजिटिव, रूल्ड आउट है। और पहला ऑप्शन भी ऑब्वियसली गलत हो जाता है इफ सेकंड इज करेक्ट। इट्स द सेम थिंग, सेम कंडीशन जो हमने एनालाइज किया था वही है ना, नथिंग डिफरेंट। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव दिया होता और डेल्टा जी नेगेटिव है तो फिर डेल्टा एस के लिए अगर पॉजिटिव साइन होगा then the condition is delta H is less than T delta S। यहाँ तो मैग्नीट्यूड की भी जरूरत नहीं है, मतलब डेल्टा H should be greater than delta H by T। उस केस में ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता, राइट? Yes, sir. Next, a reaction has delta H and delta S as given. This reaction would be बोलो 4. 4, because when both are negative it will become spontaneous only at low temperature। अच्छा, कितने टेम्परेचर के नीचे वो स्पॉन्टेनियस होगा? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? इन केस टेम्परेचर भी पूछा तो बिलो व्हाट टेम्परेचर? हाउ डू यू कैलकुलेट? H by delta S. डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से कम होना चाहिए, तो टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड बी लेस देन, इनफैक्ट टी इक्विलिब्रियम नहीं, टी शुड बी लेस देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। सो इट शुड बी लेस देन, माइनस माइनस तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, इट इज 33 into 1000 डिवाइड बाई 58। अब ध्यान रखना ये कैलकुलेशन में डेल्टा एच किलो जूल्स में है और डेल्टा एस जूल्स में है। जब डिवाइड करेंगे तो 33 को कन्वर्ट करना जरूरी, और जब ये कैलकुलेट करते हैं तो 569 आता है। यानी अगर ऑप्शंस में ऐसा बोला है कि स्पॉन्टेनियस अबव सो एंड सो टेम्परेचर या बिलो सो एंड सो टेम्परेचर, तो आंसर होगा स्पॉन्टेनियस बिलो 569 केल्विन। तो एक और क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है अगर टेम्परेचर पूछा तो। गॉट इट? अंडरस्टूड? अरे हाँ कि नहीं? Yes. चलो आगे। Ice getting converted into water. This phase transition from solid to liquid is carried out at constant temperature and constant pressure. Then work done during the process is negative, positive, zero या can't be determined. ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया है सॉलिड टू आइस के लिए।
अच्छा, पहला हिंट, the phase transition is carried out at constant temperature and constant pressure. So what is the work done का formula you can think? P external delta V. Yes, constant temperature यानी isothermal, constant pressure मतलब I can say it's isothermal irreversible against a constant pressure. मतलब I can say it's minus P external into delta V. Now when the solid is getting converted into liquid, what happens to the volume? Decreases. Decrease होता है. So this is the final volume minus initial volume. So what is this delta V? Negative या positive? Negative. आ गया ना आंसर? What is the work done then? Positive. खत्म. Correct. Yes, sir. जब सॉलिड लिक्विड में यानी वाटर में सॉरी आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा वी इज नेगेटिव, एंड बिकॉज डेल्टा वी इज नेगेटिव द डब्ल्यू विल बिकम पॉजिटिव. खत्म. आगे, at 1 atmosphere pressure, freezing of n mole of water, liquid 0 degree to ice 0 degree Celsius, then heat transfer in terms of enthalpy of fusion is given as. ऑप्शन में देखोगे तो डेल्टा एच फ्यूजन एनसीवी डेल्टा टी डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ. सिंपल है. what is liquid to solid transition called? Freezing. Freezing. पानी से बर्फ बनना is freezing. So the enthalpy associated with that is called delta H of freezing. What is the reverse process called? Fusion. And how are the enthalpies related for both of them? Negative. Negative. तो अगर इस प्रोसेस का एंथैल्पी डेल्टा एच फ्रीजिंग है तो कैन आई से दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा एच फ्यूजन. एक ही बात है. Yes, sir. एंड दिस इज ऑलवेज डिफाइंड पर मोल, और उन्होंने पूछा एन मोल्स के लिए कितना है, तो क्या होगा आंसर? 2. बस. समझा? Yes, sir. Yes. ओके, अब एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं मैंने. द वैल्यू ऑफ log k to the base 10 for a reaction A to B is. डेटा में दिया है डेल्टा H नॉट एट 298 केल्विन, डेल्टा S नॉट एट 298 केल्विन, R की वैल्यू दी है, and 2.303 into 8.314 into 298 is 5705. Which formula you will use to find log k to the base 10? Delta G is equal to delta G naught. Delta G is equal to delta G naught plus RT of ln Q. ये तो बेसिक फॉर्मूला था. फिर हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाकर इसको 0 लिया. फाइनली मेरा फॉर्मूला आया डेल्टा G naught इक्वल टू माइनस 2.303 RT ln of not ln log of k to the base 10, right? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस 2.303 RT डिवाइड करेंगे. अब 2.303 RT का वैल्यू डायरेक्टली 5705 दिया है ना.
लेकिन डेल्टा जी नॉट मुझे डायरेक्टली नहीं पता. हाउ डू आई गेट दैट? delta H minus T delta S. Correct. So delta G naught is given as delta H naught minus T delta S naught, which is in turn equal to minus 57.04 kilojoules minus T है 300, sorry 298 and delta S naught है 10 joules में है. अब इसको 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू किलो जूल्स. सो ये हो जाएगा 2.98. सो माइनस 54.07 माइनस 2.98, राइट. सो 8 and 7 15, 9 10, 4 and 2 6 and 7 5705 नेगेटिव किलो जूल्स में, और जूल्स में कन्वर्ट कर लो तो 5705 जूल्स के बराबर हो गया. तो अब मेरा LHS हो गया माइनस 5705, RHS में ऑलरेडी दिया है 5705, लॉग टू द बेस 10 k, ये दोनों कैंसिल ऑफ हो गया. सो योर k का वैल्यू इज इक्वल टू क्या? So won't it be 57050? 57050. क्यों? हाँ, You multiply by 1000, multiply by 100. In the conversion of kilojoules to joules. यहाँ पे Yes. हाँ 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 हाँ, अच्छा जूल्स में. तो ये मेरा आ जाएगा 0, तो ये कैंसिल ऑफ होकर होगा 10 टाइम्स, राइट. तो ये हो जाएगा log k to the base 10 10. हाँ, so this should be equal to 10. Fine. Yes, sir. Next, for the hypothetical reaction A2 plus B2 giving 2AB, if delta G naught and delta S naught are given, always observe the units. Delta G या delta H normally kilojoules में रहेगा, and entropies जो होते हैं वो हमेशा joules में रहते हैं. तो जब भी एंट्रोपी रिलेटेड कैलकुलेशंस हो, जूल टू किलो जूल या किलो जूल टू जूल का कन्वर्जन ध्यान रखना, ठीक है. तो रिस्पेक्टिवली एट 200 केल्विन डेल्टा Cp इज 20 जूल पर केल्विन पर मोल, देन डेल्टा H नॉट एट 400 केल्विन इज हाउ मच? 200 केल्विन पे दिया है, 400 केल्विन पे पूछा है. कुछ याद आया? How do you relate the enthalpies at two different temperature? Kirchhoff's law. Kirchhoff's equation. So Kirchhoff's equation का formula simple था ना, delta H2 is equal to delta H1 plus delta Cp into T2 minus T1, where T2 should always be taken as greater temperature. तो यहाँ पर मेरा T2 जो है वो 400 केल्विन हो जाएगा, T1 will be 200 केल्विन. ठीक है, तो आपको डेल्टा H2 फाइंड आउट करना है, और डेल्टा H1 को फाइंड करने के लिए 200 केल्विन पे डेल्टा G और डेल्टा S ऑलरेडी दिया हुआ है ना. इट्स 20 माइनस 200 इंटू 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, 1 2 3, 10 रेज टू माइनस 3 गायब. So 20 minus 4 will be equal to 16.
तो ये हो जाएगा मेरा 16 किलो जूल्स, राइट? Yes, sir. It should So be now plus. क्या हुआ? In the formula, This delta S is negative, so this will become plus, this will become 24. So now you know delta H1, you know delta Cp, and the difference of the temperature is 200. Substitute and you will get the answer. So this will be equal to 24 plus 20 into 200 again into 10 raised to minus 3. वापस ध्यान रखना ये किलो जूल्स में, लेकिन ये जूल में था, तो 10 raised to minus 3 मल्टीप्लाई करके किलो जूल में कन्वर्ट किया. ठीक है, so this will again become 1 2 3 10 raised to minus 3 gone, 24 and 4 is 28 kilojoules per mole. Clear? समझा? So can you explain the sign? Sorry? The sign to change from minus to plus. This delta S is given to be negative ना, वो मैंने पॉजिटिव ले लिया था, तो this minus and minus will become plus. Okay, sir. Yeah. So T into delta S overall will be negative, so minus and minus will become plus, so the answer is 24 here, and यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही है, तो एड अप होकर 28 हो जाएगा. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के रिलेटेड ही मान लो आपके पास log of k equilibrium through some calculation comes out to be 2.57 ऐसा कुछ. And if you want to find the k equilibrium through this, how would you do? 10 raised Log of 10 raised to, and what is 10 raised to actually? It is equal to the antilog only ना. अब 10 raised to 2.57 तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो ना, तो एंटीलॉग ऑफ 2.57. अब क्वेश्चन आता है विदाउट लॉग टेबल 2.57 का एंटीलॉग कैसे ढूंढने का? ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ, ढूंढ सकते हैं. विदाउट लॉग टेबल इसका एंटीलॉग ढूंढ सकते हैं. कैसे याद रहेगा? तो मैंने आपको बोला था विदाउट लॉग टेबल्स लॉग की सिर्फ आपको 3 वैल्यूज याद रखनी है. कैन यू टेल मी कौन कौन सी? नहीं भी याद? 2 3 5 2 3 5 का लॉग, यू नो द वैल्यूज. log 2 is 0.3, log 3 is 0.4770 जिसको 0.48 लोगे कैलकुलेशन के लिए. log 5 is 0.6990 and you take it as 0.7. बस ये 3 वैल्यू अगर याद रखा तो अब पूरा लॉग टेबल के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली नॉट एक्यूरेटली. कैसे? log 2 0.3 है, so log 2 square will be how much? 0.6. तो log 4 का मिल गया 0.6. अब वैसे 2 का क्यूब यानी 8 का 16 32 64 128 256 सबका लॉग मिल जाएगा. Yes, sir. सिमिलरली 3 का अगर पता है तो 9 27 81 सबका मिल जाएगा. आता है समझ में? Yes, sir. 5 है तो 25 125 एंड सो ऑन सबका मिल जाएगा. ठीक है, अब log 6 अगर फाइंड आउट करना है तो इसको कैन आई स्प्लिट एज 2 into 3? कैन यू गेट द वैल्यू नाउ? 0.78.
आ गया ना? क्लियर है? Yes, sir. log 7 का अगर वैल्यू ढूंढना है तो इसको भी स्प्लिट अप कर सकते हैं 2 into 3.5। अब 3.5 का वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा, बीच का वैल्यू ले लो, है ना? 0.86. पॉइंट 86. हाउ? 0.3 plus 0.56. हाँ, Yes, sir. तो 0.3 प्लस इन दोनों के बीच का वैल्यू 0.54 0.6 जो भी लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, यू नीड नॉट बी 100% एक्यूरेट, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 0.86 के आसपास आ जाएगा। log 8 का तो आपको ऑलरेडी पता है, log 9 भी पता है, log 10 भी पता हो गया, log 1 to 10 सब वैल्यूज, log 1 ऑब्वियसली 0 है ना? मेन आपका 1 to 10 का लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वैल्यूज को आप मैनेज करो थ्रू दैट। आया समझ में? नाउ इफ यू नो द लॉग्स का वैल्यू, टेल मी व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 0.3? 2. 2. So anti-log of 0.48 will be 3. Anti-log of 0.6 is going to be 4. Anti-log of 0.7 is going to be 5. Khatam. So if you want to find anti-log of 2.57 without using log tables, the 0.57 ka anti-log is very close to 4, but it will be slightly lesser than that. अब lesser than that मतलब 1 से 3.8 3.9 ले लो, चलेगा। मतलब 4 से कम इतना तो कंफर्म है, और into 10⁻², ये जो भी है वैल्यू वो पावर में जाता है, मतलब समवेयर इसका आंसर 380 के आसपास होगा। अब ऑप्शन में 370 375 380 390 ऐसा कुछ हुआ, बस वही आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन से एकदम क्लोज नहीं होंगे कि 370 375 380 और 385, ऐसा ऑप्शंस नहीं होगा। इट विल बी 380 420 520 620। अब उनमें से आप ऑप्शंस क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि वो 400 से कम होना चाहिए। समझा? Yes, sir. So this is the technique to find out the antilogs without using the log tables. अब मान लो अगर log के इक्विलिब्रियम कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, -1.56, can you find the antilog of a negative number? Can you find antilog of a negative number? अरे इतना तो log table पढ़ा है कि नहीं? No. And the answer is no. You can find the antilog of a bar value. Bar 2.56 ऐसा होता तो ढूंढ सकते ना? Negative number का antilog is not possible to be found, but you can find the antilog of a bar number. तो negative को bar में convert करने का एक simple trick है. The number before the decimal is incremented by 1 and converted to bar. मतलब ये हो जाएगा 2 बार। एंड डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उसको आप अगर 2 डिजिट नंबर है तो 100 में से माइनस करो, 3 डिजिट नंबर है तो 1000 में से माइनस करो, 1 डिजिट है तो 10 में से माइनस करो। तो इसको यहाँ पे 10 से माइनस करो या 9 से माइनस करो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। नेगेटिव नंबर कन्वर्टेड टू अ बार। नाउ यू कैन फाइंड द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर। समझा? समझा? हेलो? Yes, sir. And 0.44 का antilog is very close to 3. 3 and it would be lesser than that. Less है तो ले लो 3 से कुछ कम 2.7 something and 10⁻²। मतलब यहाँ पर ये 0.0
3 से तो कम आएगा, उतना क्लियर है? 0.027 आया ना? Yes, sir. बस, तो एंटी लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर डायरेक्ट मिलेगा, एंटी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास log ऑफ k टू इक्विलिब्रियम टू द बेस 10 कोई होल नंबर है 2, देन द k इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली इक्वल टू 10 स्क्वायर, 100 आ गया ना डायरेक्ट। बस ये 3 ही केसेस है, या तो कोई होल नंबर आएगा, होल नंबर में भी वो नेगेटिव आया तो 10 वो नेगेटिव पावर हो जाएगा, या तो फिर वो डेसिमल वैल्यू में आएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बस, दीज आर द केसेस। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now doing the calculations of finding the equilibrium constant through that formula shouldn't be a problem. मैंने मेथड आपको बता दिया है, ठीक है? Yes, sir. That's it. With this, we complete with thermodynamics. And as I've already uploaded the assignment and already discussed, you are supposed to solve the numericals, which is given after the synopsis in volume 3 and submitted before midnight tomorrow. नहीं सबमिट हुआ, थर्सडे का लेक्चर अलाउड नहीं होगा। And do it for yourself. It will give you a good practice of the thermodynamics part. So थोड़ा revise करो and then sit with the numericals, solve it. If you don't use the logs, it's okay. Try to do the approximations. और कहीं कहीं कैलकुलेटर यूज करोगे तो भी चलेगा। इट्स जस्ट दैट अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर। आपको सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। फाइन। Yes, sir. चलो डन, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.